سب سے پہلے افسوسناک خبر، کراچی اور کوئٹہ کے بعد پشاور میں تخریب کاری ہو گئی۔ پشاور کی دیر کالونی میں مدرسے میں دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے میں مدرسے کے طالب علم سمیت 7 افراد شہید ہوئے، 70 زخمی ہوئے۔ دھماکے کے وقت مدرسے میں تدریسی عمل جاری تھا۔ دھماکہ شیخ رحیم اللہ حقانی کے بیان کے دوران ہوا۔ تو آپ کو بتائیں کہ آج یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا پشاور میں، جہاں پہ دیر کالونی کے قریب مدرسے میں دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں 7 طالب علم سمیت 7 افراد شہید ہو گئے ہیں، جبکہ 70 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب مدرسے میں تدریسی عمل جاری تھا اور زخمی بچوں کی عمریں 11 سے 17 سال بتائی گئی ہیں اور زخمیوں کو پشاور کے مختلف ہاسپٹلز میں پہنچا دیا گیا ہے، جہاں پہ ان کا علاج معالجہ جاری ہے، جبکہ کچھ کی حالت تشویشناک بھی بتائی گئی ہے۔ کراچی اور کوئٹہ کے بعد پشاور میں تخریب کاری، پشاور کی دیر کالونی میں مدرسے میں دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے میں مدرسے کے طالب علموں سمیت 7 افراد شہید ہوئے، 70 زخمی ہوئے۔ مزید موجودہ صورتحال کیا ہے، ہمارے نمائندے عظمت علی شاہ ہمارے ساتھ ہیں۔ عظمت بتائے گا ابھی صورتحال کیسی ہے اور زخمیوں کی حالت کیسی ہے؟ جی بالکل، آج صبح 8 بجے پشاور کے علاقے کوہاٹ روڈ پر ایک مدرسے میں دھماکہ ہوا ہے، اور یہ دھماکہ اس وقت ہوا ہے جب وہاں پر درس جاری تھا۔ دھماکہ پولیس کے مطابق بیگ جو لایا گیا تھا اس میں بارودی مواد تھا، جس کے باعث جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے، جس سے تقریباً 70 سے زائد افراد زخمی، جبکہ 7 افراد اب تک جاں بحق ہوئے ہیں۔ جو 70 افراد اس میں سے بچے بوڑھے بھی شامل ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جو زخمی افراد ہیں ان کو نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا، جن میں سے 4 افراد جو کہ جن کی حالت تشویشناک تھی اور جلس گئے تھے، انہیں حیدرآباد برن سینٹر منتقل کیا گیا۔ ساتھ ساتھ میں LRH میں 70 سے زائد افراد کو لایا گیا ہے، اور ساتھ میں KTH اور HMC میں بھی 2 زخمیوں کو لے کے گئے ہیں۔ LRH ترجمان کے مطابق تمام تر جتنے بھی زخمی ہیں ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ متعدد افراد کی جو حالت ہے وہ تشویشناک ہے۔ 7 افراد جو جاں بحق ہوئے ہیں ان میں تمام افراد جو ہیں ان کی حالت جو جاں بحق افراد ہیں وہ تمام جو ہے وہ یعنی کہ 20 سال سے ان کی عمر زیادہ ہے، اور بچے جو ہیں وہ صرف زخمی ہیں۔ ساتھ ساتھ میں اگر بات کی جائے پولیس کے مطابق، تو پولیس کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جو ہے وہ بس ایک ٹھیک ہے عظمت، تفصیلات کے لیے بہت شکریہ۔ اسی پر بات کریں گے، سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ نوید چودھری صاحب، یقیناً افسوسناک واقعہ ہے جو پشاور میں بھی ہوا، کیا کہیں گے سر اس پر آپ؟ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور دیکھیں کہ کس آسانی کے ساتھ، جبکہ یہ تھریٹس بھی موجود تھے جو گزرا بتا رہے ہیں بار بار، اور نیکٹا نے بھی جاری کی، بڑی آسانی کے ساتھ کوئی آیا اور مدرسے کے اندر دھماکہ خیز مواد والا یا مواد والا جو بھی بیچ ہے وہ دے دیا، جس کے نتیجے میں 7 قیمتی جانیں ضائع ہوئی اور 70 سے زائد بچے اور اساتذہ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اور یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کے اوپر بہت بڑا سوال نشان ہے کہ ہر طرح کی اطلاعات موجود ہونے کے باوجود اور نیکٹا کی وارننگ جاری ہونے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کوئٹہ کے اندر بھی ایک دھماکہ ہوا، اس میں 4 آدمی شہید ہوئے، آج ہم نے دیکھا بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ پشاور میں ہو گیا۔ تو یہ ہر حوالے سے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی کارکردگی کو نئے سرے سے جانچنا اور ان کو سوال کرنا بنتا ہے، اور ان کی تنظیمیں نو کرنا بنتا ہے صحیح معنوں میں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ چلے اطلاع دیں اور اپنی ذمہ داریوں سے ہو کے بیٹھ جائیں، جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کس طرح کے تھریٹ ہیں اپنے ملک کے اندر اور کس کس شہر کے اندر ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ کون کس کو پیسے دے رہا ہے دھماکے کرانے کے لیے، اس میں ایک وزیر نے کہا تھا ایک ایسی ملک جو ہے اس نے ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے ہیں اس کام کے لیے، تو یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ اس کے بعد دھماکے بھی ہوتے جا رہے ہیں، آپ کو خبریں دینے کے لیے یا پیشگوئیاں کرنے کو دن رکھا ہوا کہ پورے ملک کا حالت ایسا کر دیں کہ انسان جو ہے وہ سب آنے جانے کے قابل نہ رہیں، لوگ شہری اپنے ملک کے اندر محصور بن جائیں دہشت گردوں کے ہاتھوں۔ بالکل درست فرمایا سر، ساتھ ہی رہے گا، ہمیں جوائن کیا ہے رہنما ANP زاہد خان صاحب نے۔ زاہد خان صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ کس طرح دیکھتے ہیں اس ہونے والی تخریب کاری کو، اور جو انڈیا اس وقت نہ صرف دعوے کر رہا ہے بلکہ واضح طور پر دھمکیاں دے رہا ہے دہشت گردی کروانے کے، اور آج دہشت گردی کا یہ واقعہ پیش آ گیا؟ دیکھیں جی، ہندوستان ظاہر ہے کہ دشمن ہے اور وہ تو اپنا عزائم کے لیے تو کچھ کرے گا، لیکن ہماری حکومت کی کیا ذمہ داری؟ میں تو ابھی شبلی فراز کو سن رہا تھا جو انفارمیشن منسٹر ان کی اپوزیشن پہ تنقید کر رہا تھا اس ثانیے میں کہ جو تباہی ہوئی ہے، اور یہ تو مسلمانی دور کی بات ہے، یہ انسانیت میں بھی نہیں ہے کہ اتنا دہشت گردی بچوں کے مدرسے کے اندر
جہاں پہ اللہ کے درس دیا جاتا ہے اسی کے اوپر یہ بم کا نصب کیا گیا. اور دوسرا یہ کہ حکومت کر کیا رہی کہ جب خود کہتے ہیں کہ اپوزیشن جلد سے کرے نہ کرے کیونکہ تھریٹ ہے, تو تھریٹ اگر ہے تو مدرسے میں جب بچے پڑھ رہے تھے تو آپ کی پولیس کیا کر رہی تھی, آپ کی لا انفورسنگ ایجنسیز کیا کر رہی تھی. اور عمران کو ابھی میں سن رہا تھا وہ اپنی وہ کر رہا تھا کشمیر میں ٹھیک ہے کشمیریوں کے ساتھ ناانصافی ہے, زیادتی ہے, ہمیں اس کی مذمت کرنی ہے, لیکن اپنی قوم کے لیے تو کوئی پیغام دو کہ اس سے جو ہمارے پھر ایک یہ ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد پھر ہماری شہروں کے اور خاص کر پشاور میں اسی روڈ پہ دندنانی پھرتے رہتے, اور ہم نے نشاندہی کی, عوامی نیشنل پارٹی نے اس کے لیڈرشپ نے نشاندہی کی کہ یہ دہشت گرد پھر ادھر سرگرم ہے, اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے. لیکن حکومت ٹچ سے مس نہیں ہوئی اور ایکشن نہیں لیا گیا, جس کا آج یہ سانحہ واقعہ ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت تو صرف اپوزیشن کی طرف پڑی ہوئی ہے اور اس کو جلد سے جلوسوں کے لیے کہ وہ نہ کرے, لیکن یہ نہیں ہے کہ عوام کی جو مشکلات ہے, جو عوام کے لیے یہ دہشت گردی کا جو ایک نیا لہر شروع ہو گیا, پرسوں کوئٹہ میں ہوا تھا, آج پشاور میں ہوا, اور یہ ایک لہر چل پڑا ہے. تو حکومت کر کیا رہی ہے, کیا ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز کیا کرتے ہیں, ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کر رہی ہے, ہماری جو پولیس ہے کہ وہ آگے کہتے کہ جی وہ بیگ میں اندر لے کے گیا تو پھر وہاں کوئی پولیس نہیں تھا, کوئی چیکنگ نہیں تھی. اگر ہائی الرٹ تھا تو ایسی جگہوں پہ تو ہائی الرٹ کا تو ہونا چاہیے, چیکنگ ہونا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ حکومت ان چیزوں سے بے خبر ہے, وہ صرف اپنی حکومت کو بچانے میں اور اپوزیشن کو لتاڑنے کی در پہ ہے, اس کے عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے. مہنگائی میں پستے جا رہے ہو, کوئی اور مشکلات ان کے وہ ہو بلا, لیکن اس کی اپنی کرسی بچے رہے. اور کے دنیا میں اب کیا پیغام دیں گے, دنیا میں تو آپ تو کہتے رہو گے, لیکن جو آپ کے اپنے ملک کا یہ صورتحال ہو پھر وہ کہے گا کہ بھئی اپنے ملک کی صورتحال تو ٹھیک کرو. تو ہماری یہاں پہ تو ہمیں اس کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر ہم مل بیٹھ کے اس کا مقابلہ نہیں کریں گے تو یہ پھر ایک لہر ہماری طرف آئے گا جس کو بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک ہے, سوائے اپنی اصلاح کی جائے, یہاں پر صرف اپوزیشن پر تنقید کی جاتی ہے. اے این پی رہنما زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. نوید شاہ صاحب, آپ نے بھی بات سنی ہے, اس سانے میں جہاں اتنی تباہی ہوئی ہے تو جیسا کہ آپ نے بھی سنا, زاہد خان صاحب کہتے ہیں کہ بجائے اس پر اپنی حکمت عملی بہتر کرنے کے وزیر اطلاعات اپوزیشن پر تنقید کر رہے ہیں. یہ بہت ہی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر اخلاقی اور غیر انسانی رویہ ہے کہ ایک طرف تو کلیئر کٹ آپ کو ڈیفیٹ ہو رہی ہے دہشت گردوں کے مقابلے پر, آپ کو اطلاع دے رہے ہیں, اور پھر آپ کے بڑے شہروں کے اندر آ کر وہ اتنا جانے نقصان کر رہے ہیں, بم بلاسٹ کر رہے ہیں. ملک کی اکانومی جو ہے وہ پہلے ہی بہت زیادہ دباؤ میں ہے. ایسی وارداتوں کے بعد کیا صورتحال بنے گی, شہری آزادیوں کا کیا بنے گا. تو یہ تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ کارکردگی کے حوالے سے یہ افسوسناک پہلو ہے کہ ہر حوالے سے یہ حکومت ناکام ہے. لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی تھی وہ بہت بڑا گفٹ تھی, ورنہ اس سے پہلے تو کہیں باہر نکلنا مشکل تھا لوگوں کا, اس کا بھی انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے. تو اب تو یہ کوئی سوال ہی نہیں بنتا کہ اگر ان کی اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر کھل کر سوال نہ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر پوری قوم کو بات اٹھانی چاہیے. اتنا زیادہ خرچہ کر رہے ہیں, جگہ جگہ ہم نے ادارے بنا رکھے ہیں اور ہمیں اطلاعات بھی مل رہی ہیں دھماکوں کی, تو پھر یہ کیسے ہو رہے ہیں, یہ کس کس کی نااہلی اور کمزوری ہے. یہ دیکھیں, کڑا احتساب جب تک نہیں ہوگا, جسے کہتے ہیں پرفارمنس آڈٹ, وہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. صرف یہ کہہ دینا جی خطرہ تھا اور دھماکہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا, یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم نے پیشگوئیاں کرنے کے لیے یہ وزیر بھرتی نہیں کیے ہوئے. یہ وزیر, مشیر, یہ سیکٹری جو ہیں اور یہ افسران جو قانون کرنے والے, یہ اس لیے نہیں بھرتی کی کہ یہ پیشگوئیاں کرتے پھریں. ہمیں تو یہ چاہیے کہ اینڈ رزلٹ کیا ہے. بالکل صحیح. پاکستان میں امن و امان کا قیام کس کی ذمہ داری ہے؟ یا تو یہ بتا دیں کہ حکومت کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں, یا قانون نافذ کرنے والا یقیناً حکومت کی ہے اور اس پر کام بھی ہونا چاہیے. نوید شاہ صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. سینیٹر مولانا عطاء الرحمان صاحب جو UIFA سے جن کا تعلق ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عطاء الرحمان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقیناً افسوسناک واقعہ ہے, جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے. آج کے واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں تو سب سے پہلے ان شہداء کی مغفرت اور ان کے بلندی درجات کے لیے دعا کروں, اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے. یقیناً یہ ہمارے ہی مدرسے کے لوگ تھے, طلباء تھے, دین کے لیے آئے تھے, اور اس وقت مشکات شریف کا درس شروع تھا جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے.
तो ये यकीनन हम ये समझते हैं कि एक मर्तबा फिर मजहबी मुनाफरत को फैलाने के लिए और मजहब को निशाना बनाकर, मजहबी लोगों को निशाना बनाकर एक दफ़ा फिर वही मुनाफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हुक्मरानों का ख्याल ये है कि इस तरह की मुनाफरत फैलाकर उसके बाद शायद हमारे लिए कोई रास्ता निकल आएगा, आएगा मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम जो है वो इस बात पर उनकी सोच पहुंच चुकी है कि ये हुकूमत नाअहल भी है, और इस वक्त जो उन्होंने ताज़ियत करने का तरीका ढूंढ लिया है, हर इस तरह के धमाके पर बताज़ियत एक बयान जारी कर दो और आपका मसला पूरा हो गया, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। तो सिर्फ ताज़ियत से जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी, हुकूमत को या मुक़्तदर इदारों को कोई कदम उठाना पड़ेगा, और जब तक वो कदम नहीं उठाते अवाम के जज्बात और मज़ीद इनके खिलाफ आएंगे। तो मैं तो इस वक्त पेशावर में हूँ और यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ा यहाँ है, बहुत बड़ी मुश्किल पेश आ गई है। लेकिन हम इस धमाके को देखते हुए शेख रशीद साहब के उस बयान को भी देख रहे हैं कि उन्होंने कुछ दिन कब ये बयान दे दिया था कि इस तरह के धमाके होंगे, ये होगा, वो होगा, और कुछ नेक्टा वालों ने भी निशानदेही की थी कि पीडीएम के जलसे जहां हो रहे हैं तो उन शख्सियात को जो है खतरा है, और कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं कि क्वेटा में या इसमें, तो क्वेटा में भी पीडीएम के जलसे के दौरान ही वहां अजहरगंज में धमाका हुआ, और यहाँ अभी से इन्होंने ये चीजें शुरू कर दी हैं। ये इंतहाई नामुनासिब तरीक़ेकार है कि आपके खिलाफ अगर कोई एहतजाज हो तो उसको आप लोगों की जानें लेकर रोकने की कोशिश करें। लेकिन एक वजाहत करना चाहता हूँ कि इस तरह पीडीएम का या मुखालिफ अपोजिशन जमातों का जो शुरू हुआ है, तहरीक शुरू हुई है, उसको रोका नहीं जा सकता। बाकी एक मरतबा फिर पूरे खानदान से, उन बच्चों से, एक मदरसे वालों से ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन सुम आमीन। ताज़ियती बयान जारी करना ही हुकूमत का काम नहीं है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। हमारे साथ है सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, जिनका ताल्लुक JOIF से है, और चौधरी नवीद चौधरी साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुआवने ख़ुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान मंगश का कहना है कि धमाके में बैरूनी हाथ को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। नेक्टा की जानिब से थ्रेट अलर्ट जारी हुआ था, सारे इदारे अलर्ट थे। दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकना मुश्किल होता है। नेक्टा की जानिब से एक थ्रेट अलर्ट जनरेट हुई, जिसमें पॉलिटिकल लोग और पॉलिटिकल गैदरिंग्स को टारगेट किया जा सकता है पेशावर और क्वेटा में। तो उसके बाद सिक्योरिटी बीफअप हुई, सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर थी। इसके जो पेशावर के सराउंडिंग एरियाज़ हैं, जैसे हम जहाँ पे मौजूद हैं, तो ये एरियाज़ खुसूसी जो है वो पुलिस के उसमें थे, और रोज़ाना नहीं तो हर दूसरे दिन यहाँ पे एक अलर्ट और यहाँ पे लोगों को ऑन बोर्ड लेना और पुलिस की नफरी यहाँ पे डिप्लॉय होना ये ज़रूरी था। लेकिन ये आप देख लें कि ये एक वाइड स्प्रेड इलाका है, तो हर गैदरिंग को या हर एरिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस जो है यहाँ पे मौजूद है और हम उस शख्स की तलाश में लगे हुए हैं। ये एक फैक्ट आप समझ लें कि आज 27 तारीख को यौम सियाह कश्मीर मनाया जा रहा था। ये फैक्टर भी हम बैरूनी हाथों को भी उनका भी ख़ास नहीं है। SP वकार खरल का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मदरसे में बैग रखा गया जिसमें बारूदी मवाद था। मामले की मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक IED जो है ब्लास्ट हुआ है, और अभी जो इब्तदाई हमें हस्पताल से न्यूज़ जो है वो मौसूल हुई है, उसके मुताबिक 4 कैजुअलिटीज़ हैं। तमाम जो एजेंसीज़ हैं जिसमें हमारी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, पुलिस है, और बाकी जो हमारे साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, सारी की सारी इस मामले को हर पहलू से देख रही हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी कल्प्रिट्स हैं अफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।
लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर के तर्जुमान मोहम्मद आसिम का कहना है कि जामिया जुबैरिया में होने वाले धमाके में 7 अफराद शहीद, 72 जख्मी हुए। 4 झुलसे हुए जख्मियों को बर्न सेंटर हयाताबाद मुंतकिल कर दिया गया है। जहाँ बहक 7 अफराद की उम्रें 20 से 30 साल तक हैं। जख्मियों में 4 बच्चों की उम्रें 9 से 14 साल तक हैं। धमाका मदरसे के बड़े तालिब इल्मों के सेक्शन में हुआ। ज़्यादातर जो है ज़ख्मी वो जले हुए हैं। ENT के भी उसमें हैं इंजर्ड, जिसकी नाक पे और मुंह पे जो है वो ज़ख्में आई हैं चेहरे पे। तो उनको हमने कंसर्न जो यूनिट्स हैं, जो OT है और जो बन हमारा यूनिट है, वहाँ पर हमने शिफ्ट किया है जी। ज़ख्मी में जो है वो 4 बच्चे शामिल हैं, बाकी जो है उम्रें जो है वो 20 से लेकर 30 के दरमियान है। बच्चों में जो है वो सारे जो 4 बच्चे हैं वो स्टेबल हैं। बर्न सेंटर हमने 4 जो तशवीशनाक मरीज़ थे, तो हम हयाताबाद जो बर्न सेंटर है वहाँ पर हमने 4 जो है वो शिफ्ट किए हैं। डेड बॉडीज़ हमारे पास जो है वो 7 मुंतकिल हुई हैं जी। ज़ख्मियों की तादाद जो है वो 72 है। जो यहाँ पे ज़ख्मी है ज़्यादातर जो है, जिस तरह मैंने कहा कि उसकी तबीयत ठीक है। 5 ऐसे इंजर्ड हैं जिसकी हालत जो है वो तशवीशनाक है। उसको हमने जहाँ पर जो हमारा अपना बन यूनिट है वहाँ OT में शिफ्ट किया है जी। पेशावर के मदरसे के तालिब इल्म धमाके के यानी शाहिद का कहना है कि जब धमाका हुआ उस वक्त मदरसे में 1200 तलबा मौजूद थे, जिनकी उम्रें 22 साल से ज्यादा थी। मदरसे में एक ही वक्त में 2000 तक तालिब इल्म मौजूद रहते हैं। हम जो दूसरी तरफ में मौजूद थे, लेकिन जो तलबा मदरसे में मौजूद थे, क्लास में इस वक्त मौजूद थे, वो तो सारे जख्मी हैं। उनकी पता नहीं लग रहा, उसका सही मालूमात अभी तक नहीं हुई। जो वहाँ से जख्मी निकलेगा तो उनसे हम पूछेगा। मदरसे में जो बच्चे थे उनकी उम्र कितनी थी? जो क्लास में जो तलबा थे तो 1200 से ज्यादा थे। उम्र सबकी 22 साल से ऊपर थे, लेकिन 1-2 तलबा थे जिसका उम्र कम थे। लेकिन जो मौजूद थे क्लास में इस वक्त 1200 तलबा मौजूद थे। अभी तक कोई मालूमात नहीं है कि कितनी यहाँ पर लाई गए, कितने वहाँ पर रह गए, कितने शहादाए, कितने जख्मी है, कितने बचे गए। कुल तादाद कितनी होती है? कुल तादाद में 2000 तक होते हैं। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने पेशावर मदरसे में धमाके पर अफसोस का इजहार किया है। अपने ट्वीट में मरियम नवाज का कहना है कि मदरसे में धमाका दिल दहला देने वाला वाकया है। बच्चों को पहुंचने वाले नुकसान ने इंतहाई रंजीदा कर दिया। मरियम नवाज का कहना है कि जिन माओं की गोदें उजड़ गईं, उनके दुख में अजाला, उनका दुख के अजाला मुमकिन नहीं है। मरियम नवाज ने दुआ की है कि अल्लाह लवाहिकीन को सब्र अता करे और जख्मियों को जल्द शिफायाब करे। ये ट्वीट सामने आई है मरियम नवाज की। उन्होंने दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि पेशावर मदरसे में धमाका अफसोसनाक है। अपने ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा, मदरसे में धमाका दिल दहला देने वाला वाकया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेशावर में धमाके की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले का कोई मजहब नहीं, वो दरिंदे हैं। दहशतगर्द पाकिस्तानी कौम के अज़्म हौसले के मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। वाकई में जख्मी होने वालों के लिए बेहतर इलाज मुआवजे को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने शहीद होने वालों के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार भी किया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेशावर में धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। ईसा की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच कल अपील की समाअत करेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपना और अहलिया का मामला FBI को भेजने के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील की थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने से मुतालिक नैब की दरख्वास्त खारिज कर दी है। आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के हवाले से दरख्वास्त की गई थी वफाकी हुकूमत की जानिब से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने से मुतालिक नैब की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन चलने पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी है। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गरीब आवाम के मंसूबे में ताख़ीर पैदा की, कौम उनको कभी मुआफ़ नहीं करेगी। उनका कहना था कि नैब न्याजी गठजोड़ बेनकाब हो रहा है, मैंने आवाम की खिदमत की जिसकी सज़ा मिल रही है। इस सब के बावजूद हम सुरखरू होंगे। पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और लाइन को और 4 साल इसमें ताख़ीर हुई, 2 साल
PTI की पार्टी ने अदालतों में इसको घसीटा ऑरेंज लाइन को और 2 साल और ज़ाया किए। 4 साल की ताख़ीर ये PTI की पार्टी के ऊपर जाती है, जानबूझकर ये ताख़ीर की और कौम का वक्त ज़ाया किया और अरबों रुपए इसके ऊपर मज़ीद सर्फ हुए। ये इससे बड़ा और जुर्म नहीं हो सकता। PTI को उसको कौम को हिसाब देना पड़ेगा। मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, लाहौर वालों को, पंजाब वालों को और पाकिस्तान वालों को, पूरे पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीर के यौम स्याह पर अपने वीडियो पैगाम में कहा है, पाकिस्तान सिर्फ अमन चाहता है, भारत से कहता हूं कि आज भी अमन चाहते हैं। उनका कहना था कि दुनिया को बताऊंगा कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया। कश्मीर के ऊपर कब्जा किया और जो कश्मीरियों का हक था कि उन्होंने फैसला करना था अपने मुस्तकबिल के ऊपर, जिसको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं, उनसे हक ले लिया गया। और ये दुख भरी दास्तान चलती रही 5 अगस्त 2019 तक। 2019 5 अगस्त को एक नई जुल्म की दास्तान शुरू हो गई और वो ये थी कि हिंदुस्तान ने अपनी 9 लाख फौज से 80 लाख कश्मीरियों के ऊपर एक मिलिट्री सीज कर दी। उनके सारे जो थोड़े बहुत हकूक थे वो भी ले लिए, उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उनको पकड़ के जेलों में डाल दिया। ये जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ये जब तक कश्मीरी कौम को नहीं मिलेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं मुसलसल इनके लिए जद्दोजहद करूँगा, इंटरनेशनली करूँगा, लोकली करूँगा, हेड्स ऑफ स्टेट से बात करूँगा, इंटरनेशनल मीडिया से बात करूँगा, एक मुसलसल दुनिया को याद कराऊँगा कि कश्मीरी कौम कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। यौम स्याह के मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने पैगाम में कहा है कि इस दिन हिंदुस्तान ने आलमी क़वानीन और कश्मीरियों के हुकूक को पामाल करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर पर कब्ज़ा किया। ये वो स्याह दिन है जब भारत ने कश्मीरी आवाम को महकूम बनाने के लिए अपनी अफवाज जम्मू कश्मीर में उतारी। अक़वाम मुत्तहिदा और महज़ब दुनिया कश्मीरियों को उनके जायज़ कानूनी और जमहूरी हक दिलाने के लिए अमली इक़दाम करे। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले भारतीय मज़ालिम को बेनकाब और उनके बुनियादी हुकूक से तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। यौम स्याह के मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पैगाम दिया कि इस दिन हिंदुस्तान ने आलमी क़वानीन और कश्मीरियों के हुकूक को पामाल करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर पर कब्जा किया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कश्मीर में भारतीय जारहियत के खिलाफ यौम स्याह के मौके पर पैगाम में कहा कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बदलकर मोदी सरकार ने तमाम अखलाकी, सफारती और सियासी कानून को पामाल किया। उन्होंने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर के लाखों अफराद को कर्फ्यू की पाबंदियों में जकड़ कर रखा। कश्मीर में भारतीय हुकूमत की जुल्म और तशद्दुद की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तानी कौम और कश्मीरी आवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। आज 27 अक्टूबर है। आज 27 अक्टूबर को हम यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है जो कि मकबूजा कश्मीर के अंदर लोगों को लॉकडाउन में रखा हुआ है। आपको याद होगा कि थोड़े अरसे के लिए हमने यहाँ पे लॉकडाउन किया था और उसके क्या असरात मुरतब हुए, और हम उनका ख्याल करें कि 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि वो लॉकडाउन के अंदर है मकबूजा कश्मीर के अंदर लोग। हम उनकी जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ से किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेगा। जिस तरह के क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी और सफारती इमदाद से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। इस मौका के ऊपर मैं उनकी जद्दोजहद को सलाम पेश करता हूँ। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक आज़ादी हासिल करेगा। वो दिन दूर नहीं रहा।
दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज के दिन को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। कश्मीर भर में एहतजाजी रैलियां निकालकर शदीद एहतजाज किया जा रहा है। मीरपुर में भी जिला कचहरी से चौक शहीदा तक रैली निकाली गई। तफसीलात के लिए बात करते हैं जाहिद बशीर चौधरी हमारे साथ हैं। जाहिद बशीर, बताएगा इस रैली से मुताल्लिक। आज से 73 साल कबल भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजें दाखिल करके मकबूजा कश्मीर पे जाबराना कब्जा कर लिया था और इसी आज के दिन को दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी, आज़ाद कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल की दोनों जानब बसने वाले जो कश्मीरी हैं आज के दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। इसी हवाले से आज़ाद कश्मीर भर में जो एहतजाजी रैलियां हैं वो निकाली जा रही हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से चौक शहीदा तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई है। एहतजाजी रैली में सिविल सोसाइटी के साथ साथ वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद थी और मुजाहिरीन ने अपने हाथों में सियाह परचम उठा रखे थे, जबकि बाजुओं पे काली पट्टियां भी बांध रखी थीं और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई, जबकि पाकिस्तान के हक़ और पाक फौज के हक़ में नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का यही कहना था कि जब तक भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जाबराना जो जुल्म है ये जारी रहेगा, तब तक ये मुजाहिरीन हैं जो सुख का सांस नहीं लेंगे और जब तक मकबूजा कश्मीर के भाइयों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ादी नहीं मिल जाती, तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। कश्मीरियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए लाहौर में मुख्तलिफ सरकारी इदारों की जानिब से भारतीय जारहियत के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में शुरका की जानिब से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी लगाए गए। ज़ीशान सफदर हमें इस रैली से मुतालिक बताएंगे। जी बिल्कुल, आज हुकूमत पंजाब की जानिब से कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए एक रैली का इनेकाद किया गया है और इस वक्त चेयरिंग क्रास में यहाँ पे मुख्तलिफ सरकारी इदारों के जितने भी मुलाजमीन हैं वो यहाँ पे कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करते हुए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इसके साथ साथ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और भारतीय जारहियत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सब देख सकते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ मुलाजमीन जो हैं जिन्होंने अपने हाथ में पाकिस्तान के और इसके साथ साथ कश्मीर के झंडे उठाए हुए हैं और इस वक्त कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी बुलंद किए जा रहे हैं। इन्होंने अपने सीनों पे बैजेस भी लगाए हुए हैं, हाथों में झंडे भी पकड़े हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं। मुझे बताइएगा यहाँ पे आप जमा हुए हैं, किस वजह से जमा हुए हैं और आज के रोज़ आप क्या पैगाम देंगे? आज का पैगाम यही है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए हम सब निकले हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। मोदी सरकार को पता लग जाए कि पाकिस्तानी अवाम कश्मीर के साथ है। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी अवाम कश्मीर के साथ है। हमारे साथ यहाँ पे खवातीन भी मौजूद हैं। आप मुझे बताइएगा। आज हम यौम स्याह मना रहे हैं पाकिस्तान में, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि हम इंडियन हुकूमत को बता सके कि अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हम सब एक साथ खड़े हैं और ना सिर्फ हमें बजाते पाकिस्तानी या मुसलमान होने के, तमाम दुनिया के इंसानों को कश्मीरियों के साथ खड़े होना चाहिए और उन पर जो जुल्म और बर्बरियत जारी है उसको रुकना चाहिए। जी बिल्कुल, हर सतह पे कश्मीरियों से यकजहती का इज़हार किया जा रहा है और इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी ममालिक को इस चीज़ का मैसेज भी दिया जा रहा है कि कश्मीरियों से यकजहती का इज़हार करें और उसका जो हक़ है वो हक़ कश्मीरियों को दिया जाए। और पाकिस्तान इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पे कश्मीरियों से यकजहती का इज़हार करती है। इनका कहना है कि भारतीय जारहियत के खिलाफ हम इसी तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक कश्मीर ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। यौम स्याह मनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद की क़यादत में DC ऑफिस से तहसील मोड़ तक रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद का कहना था, कश्मीरी अवाम को भारतीय मजालिम में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर तहसील मोड़ पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शिरका ने काले झंडे भी उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने भारतीय फौज और नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। अदाकारा सना भी FBI के रेडार पर आ गई। अदाकारा सना फ़खर के टैक्स मामलात की छानबीन शुरू कर दी गई है। FBI ने FIA से अदाकारा सना की ट्रैवल हिस्ट्री भी मांग ली। आपको बता रहे हैं अदाकारा सना भी FBI के रेडार पर आ गई हैं। अदाकारा सना फ़खर के टैक्स मामलात की छानबीन शुरू कर दी गई है, जबकि FBI ने FIA से अदाकारा सना की ट्रैवल हिस्ट्री भी मांग ली है। आपको बताएं कि अदाकारा सना ने गुज़िश्ता साल आमदन 13,58,090 रुपये ज़ाहिर की थी।
बात करेंगे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह हैदराबाद में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। शहर में महाफिल मेलाद का इनेकाद जारी है, रैलियां भी निकाली जा रही हैं। इसी हवाले से बताएंगे अली हमजा। जी अली। तो जहां खातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत के सिलसिले में हैदराबाद शहर में भी आशिकान रसूल भरपूर तरीके से शिरकत कर रहे हैं। तकारीब मनाई जा रही हैं, मिलाद की महफिल मनाई जा रही हैं, इसके साथ साथ रैलियां भी निकाली जा रही हैं। जो आशिकान रसूल हैं उनका यही कहना है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जश्न विलादत है उसको भरपूर तरीके से मनाएंगे। लतीफ़ाबाद नंबर 11 से भी एक पुरवकार रैली निकाली गई है जिसमें बच्चे भी शरीक हैं, बड़े भी शरीक हैं और लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएँ जो है वो बुलंद हो रही हैं। आशिकान रसूल नात मकबूल पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इलाकों में महफिल मुनक्किद की जा रही है उसमें भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रोशनी डाली जा रही है। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। इसके अलावा जो सब्ज़ परचम है उनकी भी बहार नज़र आ रही है। नालेन पाक जो है वो लोगों ने सीनों पर सजा ली है और यही कहना है लोगों का कि भरपूर तरीके से जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको दिखाएंगे। तो आपकी नबूवत के बाद कोई नबी नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्दीक करने वाले हैं तमाम अंबिया की। हमारा कुरान पाक तमाम अंबिया की तस्दीक करता है। मुसलमान के लिए तो तमाम नबियों के ऊपर ईमान लाना ज़रूरी है, इसलिए तमाम नबियों की नामूस की तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो इंटरनेशनल लॉ इस तरह से कायम होना चाहिए कि इस पर अमल दरामद भी हो। हम ये समझते हैं कि ये जो ब्लास्फेमी है, गुस्ताखी है शान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी नबी की, इसके ऊपर बाकायदा यूएन के चार्टर में वाज़े तौर पर यह चीज़ होनी चाहिए कि इसको टेररिज्म डिक्लेयर किया जाए। दुनिया में टेररिज्म का नाम लेकर जहां चाहते हैं जो है वो घुस जाते हैं और अपनी मर्जी के फैसले कर लेते हैं, लेकिन ये जो दहशतगर्दी है जो हमारे ईमान और हमारे अकीदे के ऊपर हमला है, इसको किसी सूरत काबिल इसको जो है कबूल नहीं किया जा सकता। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस पर तमाम मुसलमानों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, तहरीर से, तकरीर से, एहतजाज से, और जो अपना रोल अदा कर सकता है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है, इस पर हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। उम्मत को अपने दरमियान इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। जो लोग भी हमें फ़िरक़ों के अंदर तकसीम करते हैं, मसलकों को में बांटते हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। उन सब लोगों को अपनी सफ़ों से निकालना चाहिए और ख़ुद मुत्तहिद होकर हमें पूरी उम्मत बनकर इसका जवाब देना होगा। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि हम फौरी तौर पर ये अपना पूरा प्रोग्राम चेकआउट किया है कि कल जो है वो 3 तलवार पर हमारा मुजाहरा है, फ्रेंच कौंसिल खाने के करीब है, और उसके बाद हम जो है जुमे को योम एहतजाज मनाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो 1 नवंबर को इतवार के दिन 4 बजे मज़ार काइद से जो है वो आगे एम ए जिना रोड पर हम एक बड़ी रैली करेंगे और साथ साथ हम आइंदा का लाए अमल भी जो है वो बताएंगे। हम एहलियान कराची से ये अपील करते हैं कि कराची हमेशा से इस मामले पर बेदार होता है। आजकल दुनिया ज़राए इब्लाग के नतीजे में इस तरह है कि आपका किया हुआ कोई भी कदम जो मस्बत कदम है वो पूरी दुनिया के सामने जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने भरपूर इज़हार यकजहती करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ताकि पूरी दुनिया के लोगों को ये पैगाम जाए कि अहले कराची वाकई उनके दिल आलम इस्लाम के साथ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी अक़ीदतों का सरचश्मा है उनके साथ जो है वो धड़कते हैं। और आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज़ किया जाए जिससे बदअमनी फैले, जिससे माशरों के अंदर इंतशार हो, जिससे किसी को भी ये मौका मिले कि वो हमारे ऊपर कोई दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी का लेबल लगा सके। पुरअमन तरीक़े से, मौसर तरीक़े से और भरपूर एहतजाज को किया जाए और हम तमाम लोगों की इज़्ज़त और एहतराम को, जो तमाम पैगम्बर हैं उनकी इज़्ज़त और एहतराम को भी मलहूज़ रखेंगे। हम मज़ाहिब का इस लिहाज से एहतराम करते हैं कि पुरअमन एहतजाज और रैली का ऐलान किया है हाफिज नईमुर रहमान में गुस्ताखाना खाकों के हवाले से। इसी हवाले से आपको बताएं, फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की नुमाइश के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स भी सरापा एहतजाज हैं। लाहौर में मुजाहिरीन ने फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा भी कर दिया। मजीद बात करेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, मुजाहरे में कौन कौन शरीक हुआ? सदर की तरफ से गुस्ताखाना बयान के बाद पाकिस्तान भर की तरह शहर लाहौर के अंदर भी जो एहतजाजी मुजाहरे हैं वो जारी हैं और पाकिस्तान अवामी रक्षा और अवामी पासबान के तमाम जो है लाहौर प्रेस के बाहर एक बड़ी रैली का इनकाद है वो किया गया है और यहाँ पर मौजूद रक्षा मालकान समेत जो दीगर सोसाइटी के लोग हैं वो मौजूद हैं और फ्रांसीसी सदर के इस बयान के खिलाफ, मुज़म्मती बयान के खिलाफ जो है वो यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। कुछ ओहदेदारान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आज अवामी रिक्शा यूनियन, अवामी पासबान
اس لیے سڑکوں پہ نکلی ہے کہ اس دنیا کی سب سے پاک ہستی ہمارے آخری محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے ہمیں دنیا ملی، اب اس کے خلاف فرانسی صدر نے جو نابیزہ الفاظ استعمال کیے اور 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات اور ایمان کو مجروح کیا، ہم اس کے بالکل خلاف نکلے ہیں اور ہم آج یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ عوامی رکشہ یونین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عوامی پاسبان کا نہیں ہے، یہ 1.5 ارب مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ ہم آج حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فرانسی سفیر کو 1 منٹ سے پہلے ملک بدر کیا جائے اور ان کی تمام اشیاء کو بائیکاٹ کیا جائے، اور تاجروں سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ 1 منٹ سے پہلے ان کی تمام اشیاء کو اپنے سٹوروں سے باہر نکال کر ختم کر دیا جائے اور ان سے سفارتی تعلقات ختم کیے جائے۔ یہ معاملہ کسی ایک یونین تنظیم کا نہیں بلکہ 1.5 ارب مسلمانوں کا ہے۔ فرانسیسی جو سفیر کو ملک بدر کیا جائے، اس سمیت جو فرانسیسی اشیاء ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے، کیونکہ اس ایک بیان سے نہ صرف پاکستان بلکہ 1.5 ارب افراد کی، مسلمانوں کی جذبات کی جو مجروح کیا گیا ہے، جس کے خلاف حکومت پاکستان۔ سعید احمد سعید، تفصیلات کے لیے بہت شکریہ۔ پی آئی اے طیارہ حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حادثہ ٹربائن ٹوٹنے کی وجہ سے ہوا، پائلٹ کو انتہائی پیچیدہ تکنیکی خامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 2016 میں ATR طیارہ حادثے میں جنید جمشید بھی شہید ہو گئے تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے طیارہ حادثے کی ابتدائی تحقیقات رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حادثہ ٹربائن ٹوٹنے کی وجہ سے ہوا، پائلٹ کو انتہائی پیچیدہ تکنیکی خامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 2016 میں ATR طیارہ حادثے میں جنید جمشید بھی شہید ہو گئے تھے۔ پی آئی اے طیارہ حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں موٹر وے اجتماعی زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد ملہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 2 نومبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ انسدادی دہشت گردی کی خصوصی عدالت کو بتایا گیا ابھی ملزم کی شناخت پریڈ ہونا باقی ہے۔ موٹر وے اجتماعی زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد ملہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 2 نومبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی گہما گہمی جاری ہے، جبکہ انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اس وقت نمائندہ 24 نیوز عثمان جاوید ریٹرننگ افسر ضلع کھرمنگ غلام علی کے ساتھ موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں انتظامات کیسے ہیں۔ جی عثمان۔ جی بالکل، 15 نومبر کو گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے الیکشن منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں کھرمنگ کے علاقے میں، اور کھرمنگ میں مجموعی طور پر 10 امیدوار مد مقابل ہیں، جس میں 4 جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی سے، جبکہ 6 آزاد امیدوار ہیں، اور مجموعی طور پر اس حلقے میں 42 پولنگ سٹیشنز ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر ریٹرننگ افسر موجود ہیں غلام علی صاحب۔ جی بے یارہ کا میں ریٹرننگ آفیسر ہوں۔ یہاں پر جو الیکشن پروسیس 26 ستمبر سے آن وارڈ مکمل چلتا رہا، نامنیشن پیپر سے سٹارٹ کر لیا، اور 20 اکتوبر کو اس کی فائنل لسٹ لگی، جس کے تحت ہمارے پاس 10 کینڈیڈیٹ ہیں، جس میں سے 4 جو ہیں ہمارے مین پولیٹیکل پارٹیز سے تعلق رکھتے ہیں، 6 جو ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں، اور اس پورے جی بی اے کھرمنگ کو ہم لوگوں نے 42 اسٹیشنز پولنگ اسٹیشنز میں قائم کر دیے گئے ہیں۔ اس کی حساسیت کے حساب سے ہم نے ان کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیے ہیں۔ 22 ہمارے موسٹ سینسیٹیو ہیں، 8 ہمارے سینسیٹیو ہیں، باقی 10 جو ہیں وہ ہمارے نارمل پوزیشن میں آتے ہیں۔ 42 کی بھی تقسیم ہم نے اس طرح کی ہے، ریکوائرمنٹ اور نیڈ بیسس پہ اور پاپولیشن اور ووٹر کے بیسس پہ ان کو فردر ہم نے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ یہ غلام علی ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ کھرمنگ کا مجموعی طور پر نقشہ بنایا گیا ہے، جس میں مہدی آباد چیک پوسٹ سے یہ ضلع کھرمنگ شروع ہوتا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سرخ نشان کے جو پوائنٹ آؤٹ کیے گئے ہیں یہ انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز ہیں۔ اس کے ساتھ جو گرین کلر کے یہ نارمل ہیں، جبکہ اس کلر کے جو مکس جو پولنگ سٹیشنز ہیں یہ جو ہیں یہ حساس پولنگ سٹیشنز کے درجہ بندی کی ہوئی ہے، اور مجموعی طور پر 42 پولنگ سٹیشنز میں یہاں پر پولنگ کا عمل ہوگا۔ 26,000 سے زائد ووٹر جو ہے وہ اپنا حق رائے دیں گا۔ تفصیلات کے لیے بہت شکریہ۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں عمارت سے گر کر زخمی ہونے والا کاریگر موجودوڑو کے رہائشی علی اصغر سولنگی کے علاج قابل پاکستانی رقم 2 کروڑ روپے بنا ہے، اور بل ادا نہ کرنے پر ہسپتال انتظامیہ نے مریض کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ علی اصغر ویڈیو پیغام میں رہائی کی اپیل کر رہے ہیں۔ علی اصغر کی وطن واپسی کے لیے لاڑکانہ میں ورثہ نے احتجاج بھی کیا ہے۔
साहब मुझे गरीबा मिस्किना मुझे मेरे को जाने थे खुदा के लिए सबको छोड़ दे बस मेरा कोई नहीं है इधर आ जाओ मेरे सुन लो मेरी खुदा के वास्ते अल्लाह के वास्ते मैं सुन लो 10 महीने हो गए इधर कोई नहीं आता मैं अकेला हूँ अल्लाह के वास्ते तुम्हारे में हाथ जोड़ रहा हूँ मेरी मान लो। इस बुलेटिन से इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।